Hello, dear students, ninth class, CBSE and Haryana board. We are studying Happy Prince by Oscar Wilde, your chapter 5, Movement Se, class 9, right? And we have already given you summary of the lesson. Today we are here with exercise. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ये प्रोसीजर है, और वेबसाइट पे विजिट ज़रूर करना। तो आज हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं, कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन फाइनल एग्जाम्स फ्रीक्वेंटली। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू द courtiers कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली हैप्पी? है ना, जैसे टाइटल देखा हैप्पी प्रिंस, तो व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड दैट मेक्स हिम अनहैप्पी, right? So what was the, in other words, this question can be asked, why was the happy prince not really happy? तो आप ये बताइए कि he was called happy prince because he lived a happy life when he was living. No sorrow he could know ever. However, when prince was dead, है ना, and his statue was placed at a high point from where he could see misery in the city. People are suffering in plight condition, pain, hunger, want and suffering. जैसा 3 का जो एग्जाम्पल भी दिया, सीमस्ट्रेस का, प्ले राइट का, मैच गर्ल का, ठीक है। तो दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस बट नॉट एक्चुअली ही वॉज हैप्पी, right? So this will be our answer. For whom did the prince send the sapphires? Sapphires किसके लिए भेजे? Yes, it was not seamstress or match girl. Sapphire was sent for playwright, right? And another time it was sent for match girl, right? तो दोनों की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए भेजे गए। वाई डिड द स्वॉलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? क्यों नहीं गया वो? उसने बोला अब जाना है, कह रहा रुको, ये काम कर रहा हो, फिर दोबारा आया, फिर तिबारा आया। नाउ द स्वैलो डिसाइडेड नॉट टू गो, नॉट टू लीव, है ना। तो उसने गिफ्ट किए दोनों आँखें भी, ठीक है, और वो ब्लाइंड हो गया। नाउ ही हैड बिकम अ मैसेंजर ऑफ प्रिंसेस गुड डीड्स, डिसाइडेड नॉट टू लीव हिम अलोन, कि अब इसको छोड़ के कैसे जाऊं। दिस वॉज हिज वे ऑफ अप्रिसिएटिंग द इनहेरेंट गुडनेस एंड नोबल डीड्स ऑफ हैप्पी प्रिंस। उसने बोला कि नहीं, इस नोबल डीड में मेरा भी जो है योगदान हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, इसी के साथ रहता हूँ, नहीं जाऊँगा इजिप्ट। तो वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस एंड वट डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस? तो वहाँ जाके क्या किया? तो उसने उसकी हेल्प की सो दैट शी कुड गेट ओवर हर पॉवर्टी एंड शी कुड बाई फूड, ऑरेंजेस, मेडिसिन फॉर हर सन, ठीक है। और उसने क्या किया जब, तो उसने उसको जो फैन किया अपने विंग्स से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्लू अराउंड हुआ उसके बेड के चारों तरफ, ठीक है। तो ये आंसर है। व्हाट हैपन टू द लेडन हर्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस आफ्टर इट वॉज थ्रोन अवे? तो क्या हुआ था आपने देखा, इट वॉज व्हेन इट वॉज थ्रोन अवे, है ना, ऑन ए डस्ट हीप वेयर द swallow also lay dead. Later on God angel chose the hurt as well as the dead swallow as 2 most precious things in the city, ठीक है। तो ये हुआ था उनके साथ, they were just as the best 2 things available in the city observed by angels who were sent by God, right? What are the 2 most precious things mentioned in the story? Same answer. And why are they precious, and what did the angel consider the most precious things in the city and why? तो 2 most important things तो वही रहेंगी, led hurt, kind which was noble deed करता था जो, and that dead swallow who helped him, ठीक है। तो they are precious because angel chooses them for their virtues and good deeds. God gives them a place in his garden of paradise. स्वर्ग में जगह मिलती है। What is the moral of the story? moral आपसे डिस्कस किया हमने, that charity, compassionate love, ठीक है ना, sacrifice can endear us to God. Love, sacrifice and pity should be governing virtues of mankind. हमें भी दूसरों पर दया देनी चाहिए। Outward beauty superficial, ये बाहरी आडंबर, ये कुछ नहीं है। And a heart that feels for others is the noblest heart, right? And how did the swallow exhibit the value of unconditional love and devotion? He set an example. Swallow was to fly Egypt, जाना था, but he decided to stay away, stay on the with the happy prince. तो क्या दिखाता है उसके करेक्टर का? Swallow happened to stop by the city where the statue of the happy prince was placed, ठीक है ना। शेयर चांस की बात थी वो, कि उसने शेल्टर लिया
और वन नाइट जब वो जाने लगा फिर उसने रिक्वेस्ट किया, उसने देखा, ही वॉज मूव्ड बाय द प्रिंसेस सेल्फलेस लव काइंडनेस, एक एक करके वो सब कुछ प्रजा को दिए चला जा रहा है, ठीक है। दिस एक्ट ऑफ स्वैलो शो द qualities of compassion, understanding and helpfulness in his character. He helped the prince by becoming his messenger, right, and carrying the jewels from the statue to seamstress, now playwright, now to match girl. He became a constant companion to the prince after both the sapphires had been plucked out from his eye sockets. So the swallow loved the prince unconditionally. It was unconditional love, ठीक है, एंड बिकेम हिज आइज इवन, उसने सब कुछ बताया, हार्डशिप्स बताए, मिजरीज बताए, ऑफ द पीपल ऑफ योर किंगडम आर फेसिंग प्रॉब्लम, दे आर इन मिजरी, plight condition, right? He would faithfully follow all the orders of the prince and carry the gold leaves from the statue and give them to the needy. उसको दिए, तो ये सब किया उसने। और एक डायरी एंट्री आती है 5 नंबर की, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए बना देते हैं। इमेजिन यू आर द प्ले राइट, तुम वो राइटर हो हु रिसीव द मिस्ट्री गिफ्ट ऑफ ए शेफायर, तुम्हें मिला उसकी जगह, मान लो 9th क्लास के आप स्टूडेंट हैं, वाइल पासिंग बाय द स्टैचू, अब आप उसके पास से गुजर रहे हैं, यू गेट टू अनरेवल द मिस्ट्री, ओहो, तो ये था जनरल पब्लिक से जब आपको पता लगा जब वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो राइट ए डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर ग्रेटिट्यूड टू द हैप्पी प्रिंस एंड एक्सप्रेसिंग योर डिसमे एट द काउंसिल्स डिसीजन टू पुटिंग डाउन द स्टैचू। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट लिखेंगे, डे एंड डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे, उसे संबोधित करेंगे, डियर डायरी, सब्जेक्ट भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। 4 days, तो आप लिखिए आई फॉर्म में आएगा, फर्स्ट पर्सन में लिखी जाएगी डायरी। आई हैव बीन ट्राइंग टू अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ द प्रीशियस सफायर, आज मुझे पता लगा, आई फाउंड एट माई डेस्क अ फ्यू ईयर एगो, आई वंडर्ड हु दिस एडमायरर एंड सेवियर वॉज, इट वॉज आई, नाउ आई केम टू नो, आई वांटेड टू पर्सनली थैंक हिम फॉर हिज जेनरस एंड टाइमली हेल्प इन सेविंग माई लाइफ एंड माई करियर एज ए प्ले राइट। The mystery got solved today when I was passing by the statue of the happy prince. When I saw a crowd of people, among them the mayor was there, town councillors were there. They were discussing how shabby and dull the statue looked without its ruby sapphire and gold leaves. But they did not know the reality. That is when I realized that the sapphire I had got was actually one of the eye of the statue of the happy prince. ये था ग्रेटिट्यूड दिखाना है ना, तो डायरी लिख रहे हैं आप। दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हाउ द पोर एंड नीडी पीपल इन द सिटी वर मिस्टीरियसली गेटिंग ज्वेल्स एंड गोल्ड सो दैट दे कुड एंड देयर पॉवर्टी एंड मिजरीज। ये सोर्स था। ओ माई गॉड, नो वन कुड नो इवन नो ग्रेटिट्यूड। दीज थैंकलेस पीपल, टाउन काउंसलर्स एंड मेयर्स, आप दिखाइए अपनी भावनाएं डायरी में व्यक्त कीजिए बच्चों। द हैप्पी प्रिंस विद द हेल्प ऑफ द swallow, his noble companion, had brought so much happiness to the poor and downtrodden by sacrificing all he had. Great. It utterly dismayed me. मैं बहुत निराश हताश हूँ to hear of the council's decision to pull down the statue because it looked nothing better than a dull, shabby beggar. How callous, how ignorant the mayor and the councillors are. However, I shall remain eternally grateful to the happy prince and the swallow, his faithful companion. And as a token of my gratitude to them, I am going to write and stage a play to highlight their exemplary sacrifices in bringing joy and happiness to the poor and needy people of the city. May the soul of the happy prince and the swallow rest in eternal peace in the abode of God. और वाकई हुआ भी ऐसा, ठीक है ना। गॉड प्लेस देम इन पैराडाइज, राइट। तो यहाँ नाम लिखेंगे, आप अपना नाम लिख दिए, दिस इज, है ना, गुड एग्जाम्पल कि हाउ यू शुड राइट ए डायरी ऑल्सो। तो डायरी का 5 नंबर, और ये भी आ सकता है आपके पेपर में। तो लिखिए आप, ये 9 क्वेश्चन है, नोटबुक में लिखिए, ठीक है। 2 दिन दिए जाते हैं, फिर चेक करेंगे। सभी 9th C और D के बच्चे सार्थक स्कूल के लिख कर लाएंगे, ठीक है। और मॉनिटर मुझे बताएंगे कि यस ऑल आर रेडी विद देयर नोटबुक सर। और एक इमेज बनाएंगे पेज 1 पे, इमेजरी जो आपको आ रही है, 3-4 पिक्स आपको दिखाई हैं, या आप अपनी क्रिएटिविटी भी ला सकते हैं। पेज 1 पे टाइटल लिखने के बाद आपने इमेजरी जो है और ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये 9 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है, विदाउट कटिंग, नो ओवर राइटिंग शुड बी देयर, नो फ्लूड लगाते हैं बच्चे, फ्लूड नहीं लगाना है आपने।
Promise? Okay. Bye bye. I am coming with your next chapter. Till then, you enjoy this one. Thank you. God bless you all. Wonderful guys. 9C and D.